found that on folding or cutting some objects like blackboard, chalk, paper along a particular line, we get two identical halves. These objects are called symmetrical, and the line along which the object is folded is called the line of symmetry. Today let us learn more about symmetry. On folding the leaf, its two halves match each other, thus it is symmetrical. Look at the touch-me-not plant's leaves. When you touch, it is folded in halves. Can you see the two halves matching each other? This particular line created by folding of the leaves is called the line of symmetry. This bug also has a line of symmetry along which it folds into two identical halves. Take a piece of cloth, fold it into halves. Now cut two small circles from the middle of this piece. Now after unfolding you can see a symmetric pattern that has a line of symmetry along which it can be cut to two identical parts. Manu and Mrinal have one rectangular cake. Each of them want exact half of it. The cake can be divided in two ways to give equal halves. Do you want to know how? Let us find out. The cake can be divided along the horizontal line so that its two halves match each other. It can also be divided along the vertical line. So the cake has two lines of symmetry along which it can be divided to give two identical halves. Thus we can say that a rectangle has two lines of symmetry. Archie has two lunch boxes. One has three lines of symmetry. She doesn't like this box and keeps it away. She picks up another one. Let us check out. Oh, this box has four lines of symmetry. Children, look at this beautiful star. You can see the star has 5 lines of symmetry. What about this pattern? How many lines of symmetry does it have? It has 6 lines of symmetry. Rectangles have 2 lines of symmetry, but a square has 4. A circle has infinite lines of symmetry. Students, you must have noticed that when you see yourself in front of a mirror, you and your image are identical. The image is the reflection of the object in the same line. Notice that there is no change in the lengths and angles. However, in the image, the left portion of the object becomes right, whereas the right part of the object turns left part in the image. Shyam, a milkman, wants to park his van at some point on street and distribute milk to houses A and B. Can you suggest him where should he park his van so that his walking distance from the street to the houses A and B will be least? Let us find out. We can use reflectional symmetry here. Let A be the image of A in the mirror line, which is the street here. Now join the points A and B. You can see that at point B, the mirror line and AB meet. Thus, Hello, good evening, class 6th students. Welcome to Maths Mantras and I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे. आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है आपकी गणित प्रकाश बुक का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सिमेट्री. ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सिमेट्री होता क्या है. तो यहाँ लिखा हुआ है इफ़ वन हाफ ऑफ द शेप कैन बी फोल्डेड इनटू द अदर हाफ. आप कोई सा भी एक शेप लेंगे और अगर आप उसे दूसरे हाफ में फोल्ड कर दें, मतलब आप उसे मोड़ दें और उसका एक पार्ट एग्जैक्टली दूसरे को कवर कर दे, एक कोना दूसरे से मैच हो जाए, एक साइड दूसरे से मैच हो जाए, लेफ्ट वाली साइड राइट से मैच हो जाए, ऊपर वाली साइड नीचे वाले साइड से मैच हो जाए, तो हम उस प्रकार के फिगर को क्या कहेंगे? हम उस प्रकार के फिगर को कहेंगे कि उसमें सिमेट्री है. अब इफ़ अ लाइन डिवाइड्स अ फिगर
into two parts such that when a figure is folded about this line। अब उन्होंने क्या कहा कि भाई जब आप किसी भी शेप को मोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है एक आपको लाइन खिंची हुई मिलेगी, और वो जो लाइन है वो क्या करेगी, उस फिगर को दो पार्ट्स में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, जिसके कारण एक पार्ट दूसरे पार्ट को क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, मतलब कि पूरी तरीके से कवर अप कर रहा है। तो वो जो लाइन है जो कि डिवाइड कर रही है उस फिगर को दो पार्ट्स में, उसे हम कहेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री या फिर हम कहेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। चलिए हम किताब में देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। उन्होंने हमसे कहा है डू यू सी एनी लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फिगर्स एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर, व्हाट अबाउट इन द पिक्चर ऑफ द क्लाउड। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया है, जैसे कि ये आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा होगा। ये कौन सा एग्जाम्पल है, एक फूल का एग्जाम्पल है। तो अगर हम फूल को ऊपर से नीचे इस लाइन से फोल्ड करेंगे तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, और ये जो आपको चार पत्तियां दिख रही हैं, ये इस चारों पार्ट्स को क्या करेंगी, एग्जैक्टली कवर अप कर देंगी। अगर आप इस लाइन से डिवाइड करेंगे या फूल को मोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट एग्जैक्टली इन तीनों पार्ट्स को क्या करेगा, कवर कर देगा। वैसे ही आप डायगोनली करेंगे तो इस तरीके से आपको कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री मिल जाएंगी, 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब जो बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई को जब हम सेंटर से क्या करेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो ये वाला आपको जो दिख रहा है उसका विंग एग्जैक्टली इस विंग को कवर करेगा और नीचे वाला इस विंग को कवर करेगा। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएंगी बटरफ्लाई में, ओनली 1। अगर हम उसको यहाँ से डिवाइड करते हैं तो आप जान पा रहे होंगे कि ये ऊपर के दोनों पंखों के डिज़ाइन नीचे के दोनों पंखों से अलग है, इसलिए हम उसको इस तरीके से लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो फिगर है वो एक रंगोली की डिज़ाइन है। अब उस रंगोली की डिज़ाइन को आप देख पा रहे होंगे, तो आप उसे कितनी तरीके से मोड़ सकते हैं ताकि आपको एग्जैक्टली एक शेप दूसरे शेप को ओवरलैप करता हुआ दिखे। तो हमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री मिलेंगी, 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री मिलेंगी। अब ये पिन व्हील है। पिन व्हील में यदि मैं डिवाइड करने की कोशिश करूं, मान लो अगर मैं इस तरीके से डिवाइड कर लेती हूं, तो आप देखिए इसके सारे कोने जो हैं वो एक दूसरे से अलग हैं और एक भी एक दूसरे को ओवरलैप करता हुआ आपको नहीं मिलेगा। आप ऐसे डिवाइड कर लें, कैसे भी आप डिवाइड करने की कोशिश करें, लेकिन इस तरीके से आपको एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। तो यहाँ हमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होने वाला है, नहीं मिलने वाली है। इसीलिए यहाँ हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ हमने लिखा हुआ है कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। जो पिन व्हील है इट हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। अ क्लाउड मे और मे नॉट हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ किसकी बात हो रही है, बादल की बात हो रही है। तो बादल के शेप के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो सेम शेप का है, मतलब बिल्कुल गोल आकार का है या किसी और आकार का है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी या फिर नहीं भी होगी, क्योंकि उसके शेप का फिक्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो देखिए, उन्होंने बोला है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आइडेंटिफाई द लाइन ऑफ सिमेट्री इफ इट एग्जिस्ट। अब उन्होंने बोला है कि भाई ये जो फिगर है इसमें क्या लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, मतलब क्या आप इस फिगर को मोड़ सकते हैं किसी भी प्रकार से, और अगर मोड़ सकते हैं तो हमें बताना है कि किस तरीके से। तो ये जो हमारा पहला फिगर है, यहाँ देखिए ये जो है एग्जैक्टली हमें सेम शेप का लग रहा है, तो हम इस तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ कर सकते हैं। जब आप इस लाइन से फोल्ड करेंगे तो ये वाला पार्ट एग्जैक्टली इसको ओवरलैप करेगा, ये वाला पार्ट एग्जैक्टली इसको ओवरलैप करेगा। तो यहाँ हमें मिलेगी कितनी, ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ आ जाइए, ये आपका जो शेप है इट इज़ अ शेप ऑफ अ काइट, राइट। तो हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हियर वी विल बी गेटिंग, वी विल गेट ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये वाला कॉर्नर इसको कवर अप कर देगा। सो यहाँ पे अगर हम हॉरिजॉन्टली बनाते हैं तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली में हमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे भी हम 1 लाइन ऑफ सिमेट्री लिखेंगे। क्या इसमें चारों साइड एक दूसरे के बराबर हैं, एक भी नहीं है, तो इसमें आएगा हमारा नो लाइन ऑफ सिमेट्री, बनेगी ही नहीं। आप फोल्ड करके देख लीजिएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे नो लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या इस एल शेप में बन जाएगा, तो बेशक बन जाएगा। तो यहाँ पे बनेगी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री, यहाँ बनेगी ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ हम लिखेंगे ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब आप इस ट्रायंगल को देखिए, ये ट्रायंगल जो है इसमें तीनों साइड
एक दूसरे के बराबर नहीं है। जब नहीं है तो इसमें भी आ जाएगा नो लाइन ऑफ सिमेट्री। अभी ये तो हमने कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशंस को चेक करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए यहाँ आंसर में इन्होंने दिया हुआ है, इसमें भी वन लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें भी वन लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें भी वन लाइन ऑफ सिमेट्री, तो हमारा ऊपर से मैच करके आंसर बिल्कुल सही है। नो लाइन ऑफ सिमेट्री में ये देखिए ये दोनों आ रहे हैं और उस हमारा आंसर भी वही आ रहा है। अब इन्होंने क्या बोला, फिगर्स विथ मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री, अ फिगर दैट हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री इज दस ऑल्सो हैव अ रिफ्लेक्शन सिमेट्री। अब अगर किसी फिगर के पास में लाइन सिमेट्री है तो उसके पास रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी होगी। रिफ्लेक्शन सिमेट्री का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए आपने एक स्क्वायर ले लिया, ठीक, स्क्वायर लेने के बाद में हमने उसे क्या किया, यहाँ बीच में से फोल्ड कर दिया, बीच में से फोल्ड किया, और अगर हम इस जगह पर शीशा रखेंगे तो शीशे में ये वाली इमेज का रिफ्लेक्शन आएगा और एग्जैक्टली आपको ये स्क्वायर ही बना हुआ मिलेगा। तो इस प्रकार की जो सिमेट्री होती है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन सिमेट्री। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसी पर बेस्ड। उन्होंने बोला है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स अ होल हैज पंच्ड इन अ फोल्डेड स्क्वायर शीट। एक स्क्वायर शीट है, ये आपको सब स्क्वायर शीट दिखा रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया, होल्स को पंच किया पंचिंग मशीन से। अब वो ये कह रहे हैं आइडेंटिफाई द लाइन अलोंग विच द पेपर वॉज फोल्डेड। अब मुझे ये बताना है कि मैंने पेपर को कहाँ से फोल्ड किया होगा कि ये होल एग्जैक्टली इसके ऊपर आ जाए, ये वाला होल एग्जैक्टली इसके ऊपर आ जाए। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं इस तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ करती हूँ तो क्या ये वाला होल इसके ऊपर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो मतलब ये वाला मेरा अजम्पशन गलत है। अब अगर मैं इसे इस तरीके से कर दूँ तब भी नहीं आएगा, ये वाला होल इसके ऊपर बिल्कुल नहीं आएगा, तो ये भी फिर से हमारा गलत है। अब हम इसको करते हैं कहाँ से, हम इसे सेंटर से ड्रॉ करते हैं। तो सेंटर से जब मैं ड्रॉ करूँगी तो मैं क्या करूँगी, इस पेपर को फोल्ड करूँगी, और इस पेपर को फोल्ड करने के बाद में जब मैं एक जगह होल करूँगी तो ऑटोमेटिकली ये होल दूसरी जगह भी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहाँ से आएगा, डायगोनली आएगा। ये देखिए सी वाले में कहाँ से आएगा, सी वाले में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी, राइट। और ये वाला जो है इसमें आ जाएगी आपकी दो लाइंस ऑफ सिमेट्री। ये जो मैं बना रही हूँ इसे हम कहेंगे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, जो कि स्टैंडिंग लाइन होती है, और एक ये बन जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसे हम स्लीपिंग लाइन भी कहते हैं। चलिए अब हम आंसर मैच कर लेते हैं। तो देखिए एग्जैक्टली जो मैंने आपको समझाया वैसे ही हमें लाइन ऑफ सिमेट्री मिली, ठीक। अब उन्होंने दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, गिव द लाइन ऑफ सिमेट्री, फाइंड द अदर होल। अब आपको सिमेट्री की लाइन दी हुई है ऑलरेडी और एक होल दिया हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ से फोल्ड कर रहे हो और अगर एक होल यहाँ है तो दूसरा होल कहाँ बनेगा, एग्जैक्टली बगल में बन जाएगा। एक होल यहाँ है तो दूसरा होल एग्जैक्टली उसके ऊपर बनेगा। एक होल यहाँ है तो सी वाले में उसके जस्ट बाजू में बन जाएगा, डी वाले में जस्ट बाजू में बन जाएगा, ई वाले में जस्ट बाजू में बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा अदर होल। जो हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया। ये उन्होंने दिया है हियर आर सम क्वेश्चंस ऑन पेपर कटिंग, कंसिडर अ वर्टिकल फोल्ड। वर्टिकल फोल्ड का मतलब होता है कि जब हम उसको ऊपर से फोल्ड करते हैं, और हॉरिजॉन्टल फोल्ड आप देख पा रहे होंगे जब हम पेपर को नीचे से फोल्ड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल फोल्ड। चलिए ये जो है भाई हम इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लेते हैं, देखते हैं कितनी आएगी। तो 1, ये आ जाएगी 2, और कितनी आएगी, एक आ जाएगी हमारी 3, और एक आ जाएगी हमारी 4। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। चलिए यहाँ देखिए उन्होंने हमें बोला है ड्रॉ 2 फिगर्स अदर देन सर्कल एंड अ स्क्वायर दैट हैव बोथ रिफ्लेक्शन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। तो सर्कल के अलावा हमने कौन सा शेप बनाया है, एक ओवल बनाया है, और ये शेप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक्चुअली रेक्टेंगल शेप है, ठीक है। तो इसमें जब आप देखेंगे तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री अभी मैंने आपको बताया कि जब आप इस लाइन पे
मिरर को रखेंगे तो आपको क्या होगा, दूसरा पार्ट एग्जैक्टली एज इट इज़ मिलेगा। यहाँ पर भी सेम, जब आप मिरर को इस लाइन पे रखेंगे तो आपको एग्जैक्टली क्या मिलेगा, सेम फिगर, सेम इमेज आपको शीशे में दिखाई देगी। तो ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी कैरी कर रहा है। और रोटेशनल सिमेट्री का मतलब होता है कि जब आप बीच से, इस सेंटर से इस फिगर को क्या करेंगे, घुमाएंगे, तो एग्जैक्टली सेम शेप आपको मिलेगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, रोटेशनल सिमेट्री। अब उन्होंने हमसे बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में, ड्रॉ वेर एवर पॉसिबल अ रफ स्केच ऑफ अ ट्राइंगल विद एटलीस्ट 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड एटलीस्ट 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। वो क्या कह रहे हैं कि हमें एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसमें कम से कम हमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री मिले और 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री मिले। ठीक, तो ये देखिए, ये आपका जो फिगर है ये कौन सा ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में आप जानते हैं कि क्या होता है, तीनों साइड्स एक दूसरे के बराबर होती हैं और ये जो तीनों एंगल्स होते हैं ये कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ए है, उसका आंसर क्या हो गया आपका, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इसमें आपको 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, अ ट्राइंगल विद 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो रोटेशनल सिमेट्री। अब ये जो आपको फिगर बी दिखाई दे रहा है ये है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये वाली साइड्स एक दूसरे के बराबर होती हैं और जो तीसरी साइड होती है वो बराबर नहीं होती। नो रिफ्लेक्शन सिमेट्री का मतलब क्या होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल में मिलती है, ये याद रखिएगा। एंड नो रोटेशनल सिमेट्री मतलब जब आप इसको सेंटर से घुमाएंगे तो आपको एग्जैक्टली सेम फिगर घुमाने के बाद में नहीं मिलेगा, आपको अलग अलग शेप मिलेगा। तो बी वाले का आंसर हो जाएगा हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब उन्होंने बोला है थर्ड का, अ क्वाड्रिलेटरल विद रोटेशनल सिमेट्री बट नो रिफ्लेक्शनल सिमेट्री। तो ये आपको कौन सा फिगर दिखाई दे रहा है, ये है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, आपको रोटेशनल सिमेट्री तो मिल जाएगी, मतलब जब आप इस सेंटर पे पकड़ के इस फिगर को घुमाएंगे तो आपको शेप तो आराम से दिखाई देगा चेंज होता हुआ और एग्जैक्ट एंगल पे दिखाई देगा, राइट। लेकिन इसमें हमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं मिलेगी। अब उन्होंने बोला है अ क्वाड्रिलेटरल विद रिफ्लेक्शन सिमेट्री बट नो रोटेशनल सिमेट्री। अब रोटेशनल सिमेट्री इसमें नहीं चाहिए तो आप कौन सा शेप बना देंगे, ट्रपीजियम। अब ये उन्होंने बता दिया है कि एक कॉज स्नोफ्लेक है, ठीक है, और उसमें हमें बोला है कि कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री मिलेंगी। तो ये शेप है और इस पर जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमें 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री मिलेंगी। क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड एंगल्स डज अशोक चक्र हैज। अशोक चक्र में कितनी स्पोक्स होती हैं, तो आप जानते हो नंबर ऑफ स्पोक्स होती है हमारी कितनी, 24। और अगर 24 के हम अगर 24 को पेयर्स में डिवाइड करें तो टोटल कितनी लाइंस मिलेंगी, 12। मतलब कितनी हो जाएंगी इसकी, 12 लाइंस ऑफ हमें क्या मिलेगा, सिमेट्री मिल जाएगी, राइट। तो उसने मुझसे पूछा है कि कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री मिलेंगी, तो उसका आंसर है कि 12 लाइंस ऑफ सिमेट्री मिलेंगी। और कितने एंगल मिलेंगे, तो आप जानते हो सर्कल का जो कंप्लीट एंगल होता है, तो कंप्लीट एंगल कितना होता है, कंप्लीट एंगल होता है एक सर्कल का 360 डिग्री, ठीक है। और कितनी स्पोक्स हैं, ये है हमारी 12 पेयर्स हमारे बन रहे हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो जो एंगल होगा, एंगल ऑफ सिमेट्री, वो कितना आ जाएगा हमारा, एंगल ऑफ सिमेट्री आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। यहाँ पे आप देखिए वही चीज़ समझाई है, अशोक चक्र हैज़ 24 स्पोक्स। 24 स्पोक्स मिलके कितने बना रहे हैं, 12 पेयर्स बना रहे हैं। लाइन थ्रू एन ऑपोजिट पेयर इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब अगर आप लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे तो आपको कितनी मिलेंगी, 12 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री, सबसे छोटा एंगल कितना होगा, वो होगा आपका 30 डिग्री। तो इस प्रकार से आपके एंगल्स चेंज होते जाएंगे, 30 से होगा 60, 60 से होगा 120, 150, और इस प्रकार से आपको कितने एंगल्स मिलेंगे, 12 एंगल्स मिलेंगे। तो यहाँ हमारा क्विक रिविजन ख़त्म होता है सिमेट्री का। एंड आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिमेट्री के समझ में आ गए होंगे। आपको यदि कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।